Good morning, class. Good evening, class. Am I audible to you? Anka? Okay. Okay, I am audible to you. Very nice of you. We will get whatever we have read in the previous classes. Today we will get the question answer section of the conjunction. That can we apply this to the what we are reading? Okay. So so try to understand the questions, that what it is asking in the exam, what is the way of asking in the exam. So, and get the answers. You have enough time, ample time, and give me answers about them. Okay. So when I will give the first question, you will be given ample time. Then I will explain the same things thereafter. Okay. And if you have any doubt, you can ask me. So let's move to the question answer section, that whether you can approach the question or not. Yeah. Please read what is written above. Okay. Select the appropriate phrase or connector from the three options provided that can be used to create a single coherent sentence by connecting the two given sentences without changing their meaning. So what it's saying, that there are two connectors, there are the two phrases or the two sentences are there. You have to connect, आपको उनको कनेक्ट करना है, एक सिंगल कनेक्टर या डबल कनेक्टर या तीनों कनेक्टर सोच के। अब आपको जो मैंने पढ़ा है पिछले 2-3 क्लास में, वो देखना है पहले कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर का है या कोऑर्डिनेटिंग नेचर का है, क्या तीनों ही आ सकते हैं या तीनों ही नहीं आ सकते। ऑप्शन 4-5 अवेलेबल है, यू हैव टू डू। अगर आपको रॉन्ग लगे उस ऑप्शन को काटो कि ये तो नहीं आ सकता। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फर्स्ट यू डू एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ये ऑप्शन ही आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे। ओके, नाउ यू हैव टाइम। Okay, 1 minute I will give you, then you can do this. Okay. Have you done it? Can you provide with me answer? You can write in comment section that option 1 would be the answer, 2 would be the answer, whatever you have got. If it is wrong also, it's done. Don't bother about it. Okay. You said answer 3 would be the option. Some had said answer 3 would be the option, 2 would be the option, or some are saying 2 is the option. Okay, let's move to the answer section. Yes or no? I think I have given the ample time to you. Now move to the answer section. आपने ये देखा कि चीजें वही है जो मैंने सिखाई है, but they are asking in the statement based question. That is the beauty of the bank exam, that they are asking the same things are asked in the statement based question. Okay, that is the level of the clerk or the bank PO exam, that in SBI clerk they can ask such kind of the question, and in SBI PO they can ask in such mains, they generally ask this kind of the question, not the prelims. Reality is that these are the questions of the mains. So read the sentence first, that the company's expansion plans were delayed due to the logistical challenges. कि जो कंपनी का एक्सपेंशन होना था, बढ़ानी थी कंपनी, वो डिले कर दिया गया था
नेगेटिव नहीं बोल रहा है वो, लेकिन वो बोल रहा है कि ऐसा डिले क्यों हुआ, ड्यू टू द लॉजिकल चैलेंजेस की वजह से। दूसरा ये है कि अनएक्सपेक्टेड सर्ज है डिमांड में, वो फर्दर घट गई, कॉम्प्लिकेट हो गई। वाई? बिकॉज द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, उसने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया। अब देखो, इन कॉन्ट्रास्ट द अनएक्सपेक्टेड सर्च इन डिमांड फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, एडवर्सरी है, खिलाफत में बोल रहा है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रा वर्ड ही नेगेटिव है। जैसे मैं बोलूं कि कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब नेगेटिव, विरोधाभास, सेइंग अपोजिट फीलिंग्स टू ईच अदर, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्शन, तो वर्ड कॉन्ट्रा आते ही खिलाफ में। अब यहाँ पे ये चीज एड कर रही है और ये कॉन्ट्रा बता रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। समझे? फर्स्ट ऑप्शन आ ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आने के साथ साथ कौन कौन से ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ऑप्शन सेक्शन में चलिए कि ये तो गलत हो गया, ये तो ओनली वन बोल रहा है जो कि आंसर ही नहीं हो सकता। सेकंड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, टू गेट द राइट वन यू मस्ट क्लिक द रॉन्ग वन। राइट वन अपने आप आएगा, रॉन्ग को पहचानना सीखो। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज एड कर रही है पहली दूसरी में। ओके, कंजक्शन पहचानना जो ऐसी बोले कि जो सहायता कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़े थे ना आपने। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या पढ़ा था कि सेकंड क्लॉज डिपेंड ऑन द फर्स्ट क्लॉज। द अनएक्सपेक्टेड सर्ज इन डिमांड फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। फर्दर मतलब कुछ एडिशन हुआ है, और सर्ज इन डिमांड जो अनएक्सपेक्टेड बढ़ा है डिमांड में, वो उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है सिचुएशन को, मतलब कॉम्प्लेक्स बना दिया सिचुएशन को, टिपिकल बना दिया है। और कंपनीज एक्सपेंशन प्लान्स वर डिलेड ड्यू टू द लॉजिस्टिकल तो चैलेंजेस। तो यहाँ पे बीच में ऐसा कोई कंजक्शन आएगा जिसमें सेकंड क्लोज फर्स्ट क्लोज पे डिपेंड करे। ओके, तो सेकंड क्लोज पे फर्स्ट क्लोज डिपेंड करे, ऐसा कंजक्शन कौन सा है? दूसरा, इन एडिशन। हाँ, एडिशनल चीज ये है, क्या कर रहा है? इन एडिशन। तो दूसरा ऑप्शन सही। तो दूसरा कहाँ कहाँ आ रहा है? ओनली थ्री, यहाँ तो नहीं है, तो दूसरा नहीं है, वो वैसे ही गलत हो गया। तो इस और इस ऑप्शन के बीच में टकरार रह गई। देयर इज ओनली कंफ्यूजन बिटवीन द ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अब कईयों ने ऑप्शन 3 किया, पहले उनको देख लें कि कंपनीज एक्सप्रेशन प्लान वर डिलेड ड्यू टू द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एज ए रिजल्ट द अनएक्सपेक्टेड सर्ज इन द डिमांड। ये इसका रिजल्ट नहीं है। अनएक्सपेक्टेड सर्ज द डिमांड फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, रिजल्ट नहीं है, एडिशनल कमेंट है। चीजें क्या हुई है? एडिशन में, रिजल्ट में नहीं आई है। इसलिए तो ऑप्शन 3 इज आल्सो रॉन्ग। तो कई लोग ऐसे हुआ होगा कि यार रिजल्ट तो इसका ये रहा है, बट ये डिपेंड क्लोज है एडिशन पे, ना कि रिजल्ट पे। ओके, रिजल्ट बन के नहीं आया है, इन एडिशन बन के आया है, इसलिए ऑप्शन 2 इज ओनली राइट आंसर। गोट इट? ओके, पता भी चला कि हमें कंजक्शन में ऐसे सोचना होता है, ये भी पता चला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। Next question would be on your screen. You would be given enough ample time. Then after I will give the explanation. Okay, no problem. Next page. That is send. Now you can do. The new policy aims to reduce the carbon emission by the 30% within the next 5 years. Many industries are reluctant to adopt these measures due to the potential financial impacts. कोई hard spelling है, then I will tell it. कि न्यू पॉलिसी है वो एम कर रही है कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का 30% अगली 5 साल में। कई इंडस्ट्रीज है वो रिलक्टेंट, मतलब इच्छा नहीं है उनकी ऐसा करने की, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होंगे इकोनॉमी पे, ये कहना चाहता है। दूसरा,
Then you can give me answer if you have done. Only one has been given the answer. Okay. Anyone else who want to give answer? Who have recently joined, I want to tell you that we are doing exercise what we read in previous classes, like 3 or 4 classes. It was a big topic, so I took lengthy classes, and then I want to give the some exercises that are usually coming in your maths. Okay. Now I would like to explain that new policy aims to reduce carbon emission by 30% within the next 5 years. कि नई पॉलिसी है. All are giving answer one. Okay, let's see. I think all the 3 words have not been taught. Okay, so these kind of the things I have not taught, because I have taught in the offline classes. These all 3 words has been discussed there. I have not taught in online classes because that is a separate connector class, not the conjunction class. And connector is not a topic according to me, but I explained during it because this comes in conjunction only. When I taught in the offline classes, I've already taught this kind of the words. Okay, I will explain here also, so no need to worry. The new policy aims to reduce the carbon emission by the 30% within the next 5 years. कि जो नई पॉलिसी है वो रिड्यूस करेगी कार्बन एमिशन, जो धुआं है उसको बाय 30% विद इन द नेक्स्ट 5 years. और उसके लिए कर क्या रही है? अब ये देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. मेनी इंडस्ट्रीज आर रिलक्टेंट, इच्छा नहीं है उनकी. दे आर नॉट विलिंग टू एडॉप्ट दिस, या पालना करने के लिए मेजर्स ड्यू टू द पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स. क्योंकि इसका क्या उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? फाइनेंशियल इम्पैक्ट. पेट्रोल बेचना बंद कर देंगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना. वही कह रहा है. कार्बन एमिशन धुएं कहाँ से होता है? स्मोक, वेहिकुलर पोल्यूशन है. सो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी. तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी, तीनों में कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है? पहले तो ये देखो, नेवरथलेस इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी. नेवरथलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो फिर भी, या फिर के बावजूद. के बावजूद. कन्वर्सली का मतलब भी होता है उल्टा, रिवर्स. कन्वर्सली मतलब रिवर्स कंडीशन, मतलब ऐसा होने के बावजूद ऐसा, दैट इज कन्वर्सली. हेंस फोर्थ का मतलब इसलिए, सो दैट. अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, और यहाँ पे ऑप्शन तीनों में से हेंस फोर्थ पॉजिटिव है, जबकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, जबकि ये कोऑर्डिनेटिंग है. तो हेंस फोर्थ तो कोऑर्डिनेटिंग है, इसलिए कैंसिल हो गया. सो जहां जहां वन आ रहा है वो कैंसिल. आपने वन ही किया आंसर, वो गलत है. ठीक है, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत. अब क्या बच गया? फिफ्थ और थर्ड. क्या बच गया? फिफ्थ और थर्ड. जैसे मैं नोट विथ स्टैंडिंग आपको यूज बता देता हूँ, कैसे यूज करना है. एक बार इसको मिटा देता हूँ. और कहीं पे भी ये कभी भी आए, देन आल्सो यू कैन यूज इट लाइक सच लाइक दैट. कि इसको आप यूज कर सकते हो. देखो, एक वर्ड है नोट विथ स्टैंडिंग. इसका मतलब अब तो पता चला. जैसे मैं सेंटेंस में यूज करूं, शी वाज टायर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग. शी वेंट फॉर शॉपिंग, शी वेंट फॉर
शॉपिंग। कि वह थकी हुई थी, सेंटेंस कैसा है कि ये नेगेटिविटी दे रहा है, शी वेंट फॉर शॉपिंग। अब उसका बिल्कुल उल्टा किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि नॉट विथ, क्यों थकी हुई थी, इसके बावजूद वो कहाँ गई? शॉपिंग के लिए। न्यू पॉलिसी रिड्यूस करना चाहती है एमिशन, पॉजिटिव सेंटेंस, बट कंपनियां नहीं करना चाहती क्योंकि उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए नॉट विथ स्टैंडिंग से जुड़ सकता है। जोड़ के देखो कि द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 30% विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर, नॉट विथ स्टैंडिंग मेनी इंडस्ट्रीज आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट, उनकी इच्छा नहीं है दीज मेजर्स। रीजन भी दिया है कि पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट्स। सो सेकंड इज राइट, नेवरथलेस इज राइट। जहां जहां नेवरथलेस का ऑप्शन किस किस में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, क्योंकि ये तो पहले ही कर चुके थे जहां पे वन आया है, और जब इसमें भी वन है तो ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचा क्या? ऑप्शन ये। थर्ड भी देखो, कन्वर्जली, कि ऐसा है बट फिर भी ये अच्छा हो रहा है, बट कन्वर्जली मतलब वो घटाने के लिए तैयार नहीं है। Many industries are reluctant to adopt these measures due to the financial impacts. Okay, got it? ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड। सबको समझ में आया? ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का एक और वर्ड भी है, नेवरथलेस। नेवरथलेस मतलब इसका भी फिर भी, ये भी कहा कैसा यूज होता है? कॉन्ट्रेडिक्टरी। सी ट्राइड हार्ड, सी वाज फ्राइटन्ड, नेवरथलेस सी ओपन द गेट। वो डरी हुई थी लेकिन फिर भी उसने गेट खोला। पहला सेंटेंस, वो डरी हुई थी, नेगेटिव, फिर भी उसने गेट खोला, पॉजिटिव। बीच में क्या लगा? नेवरथलेस। एक और वर्ड भी है, नॉनदलेस। नॉनदलेस इसका मतलब भी वही है, फिर भी। नॉनलेस सी वाज इल, सी केम टू मीट मी, वो इल थी, नेगेटिव, सी केम टू मीट मी, पॉजिटिव। वहां पे बीच में क्या डाला? नॉनलेस। लिख लेना तीनों। और कब आते हैं? जब कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंस हो, एक दूसरे के खिलाफ वाले हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या एक दूसरे के अपोजिट बात करे। यहाँ पे भी कर रहे थे, और ये भी ऐड करने लगा वहां पे कन्वर्जली। कन्वर्जली मतलब इन सब चीजों के बावजूद फिर भी ऐसा हुआ। आई आई रिव्यूड हिम, मैंने उसको डांटा। कन्वर्जली ही स्टिल वेंट टू द मार्केट, फिर भी वो मार्केट गया। मार्केट जाने के लिए डांटा था लेकिन फिर भी गया वो पीछे से छुप के। सो दैट इज द काइंड ऑफ द सेंटेंस। चले नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इजी है बट कंफ्यूजिंग है। थर्ड सेंटेंस इज कंफ्यूजिंग बट इजी बट कंफ्यूजिंग, यू डू इट। कौन सा आएगा? You can answer me now if you got. देखो ऐसा येट पढ़ाया था मैंने, बिकॉज भी पढ़ाया था। ओके, आंसर इज कमिंग। मेनी बेसनी सोलापुर, मनीषा इज आंसर्ड 1, महेश जादव has answered 4. You all can answer. Okay, you are getting right answer or not, that is not important. I want that you are utilizing what I have taught in last 3 or 4 classes. Okay, you have answered. Many have given answer 1, no problem. Vaishnavi answered 4. And okay, now I go to the explanation session. We have given the answer. Very good. We have answered, or we have not answered. They have done their exercise at home. You can see the answer section now. Okay, here is the sentences: she is rich, she is humble. Okay, first sentence is she is rich, yet she is humble. This is rich. It's general statement, but this is positive statement. This is neutral statement.
कि वो रिच है, वो बहुत पैसे वाली है, लेकिन अभी भी फिर भी yet she is humble, फिर भी। सही लग रहा है? कॉन्ट्रेडिक्टिंग वन अनदर। और ऐसे सेंटेंस हो भी सकते हैं, शी इज रिच बिकॉज शी इज हम्बल, वो इसलिए वो धनवान है इसलिए वो विनम्र है। हम्बल मतलब ए पर्सन हु गिव्स रिस्पेक्ट टू अदर्स। कई बार आपका मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा है ना, बिकॉज शी इज हम्बल, मतलब ऐसा है कि बिकॉज है कि वो रिच है इसलिए वो हम्बल है, ये रीजन है क्या उसका? नहीं है। सो दिस आंसर इज रॉन्ग। शी इज रिच, वो इसलिए रिच है बिकॉज एज शी इज हम्बल, कि वो इसलिए हम्बल, वो रिच इसलिए बन गई क्योंकि वो विनम्र है। विनम्र होने से रिच थोड़ी हुई, वो तो अपने डीड से रिच हुई होगी, काम करती होगी, बिजनेस करती होगी। सो दैट इज आल्सो मोर देन वन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो वैसे का कैंसिल, मोर देन वन ऑफ द अबव है नहीं। सो द ओनली राइट आंसर इज, हाँ मल्टीपल कंजक्शन सही हो सकते हैं बट यहाँ पे केवल एक ही सही। आया समझ में? ओके। Pallavi has given the right answer. Manisha has given the right answer. Many others has given the right answer. Whoever given the right answer, hmm, very good. And who have also tried also, they are also good. Like Vaishnavi and Mahesh has also tried. So best of luck next time. Okay. Have you cleared? Next time, better luck next time. They are rather expensive. They are quite hard to find. So find the answer and then give me within the 30 second or the 1 minute. Done? You can answer that. You are answering. Pallavi has answered three. You can answer. Mahesh Yadav third. Okay. Others can also answer. Whether it's wrong or right, it doesn't. I won't be bothered about that. But at least you answer. Okay. Ajay has answered three. Okay, very soothing and very pleasant. And then I want to go to the explanation section. Okay. So the first option is that they are rather expensive. वो expensive है, although they are quite hard to find. लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है उनको पाना। ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्टरी है। हम ऐसे कहते हैं कि वो महंगा तो है लेकिन अच्छा है ना? वही है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दे आर नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी। और आल्दो किस लिए आता है? कॉन्ट्रेडिक्टरी, क्योंकि आल्दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। ऐसा है लेकिन हालांकि दे हार्ड टू फाइंड। ऐसा है, ऐसा बोलना चाहता है क्या वो कि दे आर रेदर एक्सपेंसिव लेकिन उनको मिलना मुश्किल है हालांकि। सो दिस इज द रॉन्ग। ओके, दिस इज नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी। सो द सेकंड सेंटेंस, दे आर रेदर एक्सपेंसिव अनलेस दे आर, ये तो एक फिलोसॉफिकल सेंटेंस। या अनलेस तो किस लिए? कंडीशनल के लिए आता है। इवन अनलेस को इवन इफ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दे आर क्वाइट रेदर एक्सपेंसिव इवन इफ दे आर क्वाइट हार्ड टू, सेंसलेस, मतलब ही नहीं निकलता है। सो दिस इज आल्सो
कि वो इसलिए महंगे हैं क्योंकि क्योंकि उनको महंगे हैं लेकिन उनको पाना बहुत मुश्किल है। पहले ही वो बोला दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड, अब इवन इफ लगाने की क्या जरूरत है। दे आर रेदर एक्सपेंसिव सिंस दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड। जब रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो कि दे आर रेदर एक्सपेंसिव, ये क्या है रीजन या रिजल्ट। दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड, ये रीजन है, ये रीजन है, बट दे आर रेदर एक्सपेंसिव रियल में क्या है, रिजल्ट है। जब रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, सिंस दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड, क्या है क्वाइट हार्ड टू फाइंड, दे आर एक्सपेंसिव, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। रीजन दे रहा है वो इसका, तो क्यों है वो, दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड क्यों है, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है। मैंने उल्टा लिख दिया, रीजन और ये रिजल्ट, तो वहां पे क्या आता है, सिंस। ओके, सो आंसर ऑप्शन थर्ड इज स्टिल राइट। मोर देन वंस तो खत्म हो गया ना जब दो आंसर गलत है। सो हु हैवर आंसर्ड, पल्लवी, महेश, अजय, दे ऑल हैव आंसर्ड राइट। ओके, वेरी गुड ऑफ यू, and better luck for the next time to others also. They can answer, there is nothing wrong in it. Okay, he did not attend the party, I did not invite him. Okay, now you can give me answer. So one Mahesh is answered, one Akanksha is answered, one any other. If any other one has got the right answer, whichever they think they can answer. Okay, within the next 10-15 seconds I would like to go to the explanation section. Okay, now I should go to the comment answer section. Okay, so many of you have answered one, many of you have answered 3, 2, or any other else. So first question. So these are the conditional sentence. These are the conditional sentence. He would have attended. Would plus have. This is the conditional sentence of the past. Attended the party if I had invited, but he has not invited him. So this is the past perfect. This is followed by the would have, and attended is the third form, मतलब past participle, और जब would और have आ जाता है तो verb की आती है थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सही है ये। द पार्टी इफ आई हैड इन्वाइटेड, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर मैं इन्वाइट करता तो इमेजिनरी कंडीशन के लिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही है, पहला सेंटेंस सही है। यहाँ पे वुड हैव अटेंडेड यहाँ तक सही है, द पार्टी यहाँ तक सही है। इफ आई कुड हैव इन्वाइटेड, कुड नहीं आता है, कुड तो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, कैन की सेकंड फॉर्म, यहाँ आता है वुड,
इसलिए सेंटेंस ही गलत हो गया, इसलिए रॉन्ग है। ही वुड हैव अटेंड द पार्टी, मैंने अभी ऊपर बोला है कि अगर वुड हो हैव हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे गो होता तो गोन आता, ही वुड हैव गोन टू द पार्टी। यहाँ पे अटेंड है तो अटेंडेड आता, ईडी। ओके, सो दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बचे नहीं, क्यों? क्योंकि केवल वन ही सही है। सो महेश एंड आकांक्षा एंड मेनी अदर्स हैव गिवन द राइट आंसर। who have given the right answer are very good. Okay, so the answer first would be the right answer. Who have attempted and provided me with the wrong answer don't bother, because conditional sentence has been not covered. When I will cover I will tell, but आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतना आइडिया हुआ कि would plus have आता है तो verb की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन फिर भी आधे आधे तो सही है, तीसरा तो डायरेक्टली ऑप्शन से गया। सेकंड वुड हैव अटेंडेड दोनों सही है, बट आपने कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस में कुड नहीं देखा होगा। इमेजिनरी सेंटेंस में कुड नहीं, वुड ही रहता है। और देखो वापस हैव आया तो यहाँ पे इनवाइटेड आता। अब पास्ट का है इसलिए यहाँ पे हैव नहीं आ सकता, हेड आएगा। पास्ट परफेक्ट, हैव किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए हैव था, ये गलत था। ओके, गॉट इट? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ अगर किसी को दोबारा समझना हो आई कैन टेल, नो प्रॉब्लम, यू कैन से मी। हाँ करिए, ये करिए। द कंट्री वाज इन स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल। देखो टर्मोइल का मतलब बता देता हूं, प्रॉब्लम। और कैसी प्रॉब्लम? ग्रेव। ग्रेव मतलब सीरियस। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। Provide me with answer, give me answer. Have you done it? You can give me answer. Okay. Can I give the explanation section now? You have answered. Whatever you have given the answer, let's enjoy it. That what is the right answer? Okay. The first sentence is that the country was in the state of the deep turmoil. The president declared an emergency. Country क्या था? Deep turmoil में था, और president ने एक declare की एक emergency. Okay. कंट्री, दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? एक जैसे ही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी तो कुछ नहीं आएगा। एक स्टेटमेंट को दूसरा फॉरवर्ड करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आएगा पहली सी, लेकिन तीनों में से कोई कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं। द कंट्री वाज इन स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल एज द कंट्री, मतलब यहाँ पे देखो ऊपर क्या बोला है कि यहाँ पे स्टार्टर चाहिए उसको, ना कि कनेक्टर। तो यहाँ लगना है वो सेंटेंस, कहाँ लगना है? एज द कंट्री, यहाँ पे आना है एज द कंट्री। एज वर्ड आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, रीजन रिजल्ट वाला है, क्योंकि ऐसा था। Was in a state of the deep turmoil, the president declared an emergency. So the first sentence is absolutely right. On declare an emergency in a state of deep turmoil, जच ही नहीं रहा। ये पीछे आगे भी declared an emergency, फिर शुरुआत कर दी declaring an emergency। जब declared कर दिया तो declaring क्या है? सेंटेंस का सीक्वेंस ही गलत है, रॉन्ग। हाँ, some has answered the fourth.
बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ये भी लगा के देखो, बीइंग एन स्टेट ऑफ कंट्री वाज इन ए स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल, दैट इज आल्सो नॉट राइट। बीइंग इन स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल सीधा ऐसे यूज होता, देन इट कैन बी राइट सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हो सकता है, या फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म जीरंड की तरह, जबकि आपके जीरंड अभी बताया नहीं गया, इसलिए मैं उसकी तरह नहीं जाऊंगा। बट बीइंग प्रीपोजिशनल लाइक बेरिंग, बीइंग, सीधा उस वर्ड को यूज करके, तो बीइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, बीइंग इन स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल, लेकिन कंट्री है आगे, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। सो द ऑप्शन वन इज द ओनली राइट ऑप्शन। जहां पे सेकंड है वो तो वैसे ही गलत हो गया, सेकंड यहाँ पे भी है। यहाँ कई लोगों ने इसको किया, ये गलत है, बिकॉज बीइंग इन स्टेट ऑफ, फिर स्टेट ऑफ डीप टर्मोइल, ये गलत वर्ड। ओके, डन। पता चला हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सो इट वुड फिल्टर मोर एंड मोर, एंड व्हेन यू विल फिल्टर यू विल डू द राइट थिंग्स। ओके, चीजें पढ़ रखी है आपने, कर भी रहे हो, बट थोड़ी थोड़ी गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, इमोशनल एरर्स यू आर डूइंग। नेक्स्ट, इसको भी चेंज करना है। देखो पहले ऊपर पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है, कई लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं ऊपर, कि फ्रेज या कनेक्टर वो चाहिए जो तीनों ऑप्शन में उसको यूज कर सकते हैं, दो सेंटेंस के used in single sentence to form the two sentences given below implying the same meaning as expressed in the statement sentence, कि जैसा ये दे रहा है वैसा ही दे। अब वो कनेक्टर ऐसा नहीं है कि स्टार्टर की तरह नहीं आ सकता, देखो इस लिखा हुआ ब्रैकेट में, इट मस्ट बी एट द स्टार्ट। Have you done it? Mahesh has given the answer. Manisha has given the answer. One or two more. Others can also provide me with the answer. Don't think that what will happen it is if it is wrong. You can do wrong here, but I want things must be right at the time of the examination. Okay. Can I give the explanation? Subhangi has given the answer. Manisha, Mahesh, Vaishnavi. Yeah, Vaishnavi is given the last answer. It is okay. Whoever they given the answer, that they are most of the persons are giving the answer four, only four. Okay. So after firing three bullets, police arrived at the railway station. The suspect saw them, fired three bullets. ऐसे दो दो बार three bullets थोड़ी आएगा. So this is wrong. In watching the police arrived, this is in watching word ही गलत है. Okay. So as soon as the police arrived at the railway station, the suspect saw them, fired three bullets and ran away is the only right answer. And whatever you have right, अगर पहला गलत है तो पहला यहाँ गलत, second and third, यहाँ पे थर्ड है तो ठीक है, लेकिन सेकंड है तो ये गलत, none of these वैसे गलत, only third is the right option. Who have given the answer, whether it's Mahesh or Manisha, Subhangi or many more, they have written the right answer. Okay, they have written the right answer. They have given me the right answer. Next, Maxine was the topper in the class. Sasa was in the bottom three. Provide me with me. Provide the right answer within the 30 seconds. It's a very easy question. Very easy. Real.
Okay, many are giving the answers 4 because they have read 4 through me, unless मैंने पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, whether it's wrong or right it doesn't matter. Okay, Maxine was the topper in her class, Sasa was in the bottom 3. Maxine टॉपर था क्लास में, सासा वाज इन द बॉटम 3, सासा बॉटम 3 में था। ओके, पहला नॉट विथ स्टैंडिंग, पहला क्या था? नॉट विथ स्टैंडिंग, गलत। किसके लिए आता है? कॉन्ट्रडिक्टरी। ये कॉन्ट्रडिक्टरी के लिए तो आता है, लेकिन ये आता है जब इन सब चीजें करने के बावजूद भी, अभी पहले करवाया था इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन सब चीजों के बावजूद, कि मैक्सिम वाज द टॉपर इन द क्लास इन स्पाइट ऑफ सासा वाज इन द बॉटम 3, गलत। मैक्सिम वाज द टॉपर इन द क्लास अनलेस सासा वाज इन द बॉटम 3, अनलेस मतलब कि फिर भी, कि अनलेस यू ट्राई हार्ड, वैसा सेंटेंस है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल राइट वेयर इज दे रहा है, कि जबकि, जैसे सेंटेंस आई वॉज परसुइंग इंजीनियरिंग वेयर इज शी वॉज परसुइंग एमबीबीएस, कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था लेकिन वो एमबीबीएस कर रही थी। दैट उस वेयर इज मतलब अलग अलग, आई वॉज फॉलोइंग कलाम वेयर इज शी वॉज फॉलोइंग डॉक्टर अम्बेडकर, गोट इट? ऐसे ही रहना चाहिए ये सेंटेंस। सो द ऑप्शन इज only 2. You have given me answer 4. Okay, Mahesh, Subhangi, Vaishnavi, Pallavi, all are right. कि whereas is the only right answer. Okay, और else जो अगर ये है तो ये सारे गलत है। समझ में आया? यू आर डूइंग इट राइट, मतलब जो क्लासेस ली गई है उनका रिजल्ट दिख रहा है। ओके, पहले 4-5 क्लासेस जो हुई है ऑनलाइन, दे आर आल्सो गेटिंग द रिजल्ट, मींस हाँ काम किया है तुमने, अच्छी बात है। जॉन इज ए मेंबर ऑफ द आर्ट्स क्लब, द क्लब मीट्स ऑन मंडेज। हाँ बताओ इनमें से, कि देखो पूछा क्या है ऊपर, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंस। ये कुछ उल्टा सीधा पूछ लेते हैं ना, इस बार उन्होंने क्या किया, पहले सेंटेंस जोड़ा और उसमें से पूछा कि ये इन चारों में से कोई सही है क्या। कैन यू आंसर? ओके, मैंने आंसर 3। ओके, so let discuss the answer. The arts club है जॉन एज ए मेंबर, आर्ट्स क्लब में जॉन मेंबर है, एंड मीट्स ऑन मंडे। ये क्या बात हुई कि मेंबर है और वो मिल जाते हैं मंडे को? ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज द सेंटेंस हैज नॉट ऑफ द इक्वल रिंग। मैंने बोला था कि एंड इक्वल रिंग के सेंटेंस को जोड़ते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, सो दिस इज रॉन्ग। जॉन मीट्स ऑन मंडेज विद द आर्ट्स क्लब, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कहने का कि जॉन मीट्स ऑन मंडेज विद द आर्ट्स क्लब, ये नहीं है। वो बोल रहा है कि जॉन मेंबर है और वो मिलते हैं, मंडे को उनको मीटिंग होती है। ठीक है, तो जॉन इज ए मेंबर ऑफ द आर्ट्स क्लब, ये ठीक है यहाँ तक।
ये डेट मीट्स ऑन मंडेज, और ये उस रीजन का क्या है, रिजल्ट दे रहा है। सो रीजन बता रहा है यहाँ पे। सो दिस इज राइट वन, दिस इज राइट वन। हु हैज प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ द आंसर इज राइट वन। द क्लब मीट्स ऑन मंडेज विद जॉन एज हिज मेंबर्स, क्योंकि वो मेंबर है इसलिए मिलते हैं जॉन से। दिस इज आल्सो रॉन्ग, नॉट गिवन द राइट वन। ओके, सो द ओनली थ्री वाज द रॉन्ग। अच्छा था। हाँ, नेक्स्ट। She scored full marks in her exam. Mohini would not be allowed to participate in the annual day. पॉजिटिव है, नेगेटिव है। What would be the answer? पहले ऊपर भी पढ़ लेना कि लिखा हुआ क्या है। स्टार्टर चाहिए उसको, इस बार स्टार्टर बीच में नहीं चाहिए, स्टार्टर चाहिए। सो many are answering. Okay, very good. Mahesh, Akanksha, Ajay, Manisha, Subhangi, whichever, whatever your answer may be, let's see it. She scored full marks in her exam. Positive sentence. Mohini would not be allowed, okay, to participate in the annual day. Vaishnavi, Pallavi, many are answering 1-1. Okay, many 3-2-1-1. Okay, let's see. Starter चाहिए। यहाँ पे लगाऊं क्या मैं पहले, unless she scored full marks in her exam, मोहिनी would not be allowed, कि जब तक मोहिनी की कंडीशनल सेंटेंस, कि जब तक उसके पूरे मार्क्स नहीं आए तब तक मोहिनी को अलाउड नहीं किया जाएगा एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहला सही है। कंडीशंस दे दी कि जब तक नहीं आए, कि अनलेस यू ट्राई हार्ड यू वोंट पास, तब तक पास नहीं होगे जब तक ट्राई नहीं करोगे हार्ड। आता है ऐसा सेंटेंस? सो फर्स्ट इज राइट। कहाँ फर्स्ट आ रहा है? यहाँ आ रहा है। कहाँ फर्स्ट आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा। ओनली टू फेल हो गई कंडीशन, यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 3 और 1 आ रहा है, तो यहाँ हो सकता है राइट हो, यहाँ पे भी हो सकता है राइट हो। सो सेकेंड, वेरेज वेरेज सी स्कोर्ड फुल मार्क्स इन हर एग्जाम। वेरेज दो अलग अलग कंडीशन को बीच में आता है कनेक्टर, ना कि शुरुआत में। और अगर शुरुआत में आता है तो एक अलग तरीके से आता है, कि जब आप कोई दो बहुत बिल्कुल डिफरेंट, नॉट पोल साउथ पोल की तरह सेंटेंस हो, कि ही फॉलोज गांधी वाई वेरेज आई फॉलोज हिटलर, ठीक है, तो वहां पे आता है वैसे सेंटेंस। तो वेरेज नहीं आएगा। At least she scored full marks in her exam. Mohini would not be allowed to participate in annual day. कि अगर जब तक नहीं करने दिया तब तक, गलत है, सेंस ही नहीं निकल रहा कि इतने मार्क्स नहीं आए, नॉट गिविंग सेंस। सो 3 इज आल्सो रॉन्ग, जहां जहां पे 3 आ रहे हैं। सो द ओनली ऑप्शन 1 इज ओनली राइट फाइन। सो whoever answered option 1, very good of them. Okay, now moves to the next section, that is 11th. The central government must cut down the defense budget, otherwise the financial crisis will not be resolved. Give me answer. तो अनलेस मतलब जब तक, वाइल मतलब जबकि या हालांकि, ये बाद में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में यूज होता था। ये दोनों में यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ये कंडीशनल सेंटेंस।
अरे बाप, करिएगा एक बार इसको। Have you done it? Okay, all are answering first. Okay, Vaishnavi, Pallavi, Mahesh, Agansa, Shivangi, all are answering first. Okay. The central government must cut down. यहाँ पे भी क्या चाहिए? Starter. तो पहला लगा के देखो, unless the central government cuts down on the defense budget, otherwise the financial crisis will not be resolved. बिल्कुल राइट है। तो फर्स्ट तो राइट है, जहाँ जहाँ फर्स्ट आ रहा है वो ठीक हो सकते हैं। यहाँ फर्स्ट ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ओके, सो एलिमिनेशन थ्योरी इज वेरी गुड टू गेट द राइट आंसर। तो जो नहीं सही है वो गलत है, वो आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, while the central government की सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कट डाउन द डिफेंस बजट, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। जहां जहां सेकंड आ रहा है दैट इज रॉन्ग, तो यहाँ सेकंड आ रहा है बट रॉन्ग, फर्स्ट है बट सेकंड आया तो इसलिए रॉन्ग। अब यहाँ पे थर्ड को और देख लेते हैं। आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद अदरवाइज द फाइनेंस, सेंसलेस सेंटेंस है ना, नॉनसेंस बन गया, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो द ओनली राइट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज द राइट आंसर। गॉट इट? वही यहाँ पे फिट बैठ रहा है। कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो, कि अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कट नहीं किया डिफेंस बजट, तो अदरवाइज यहाँ पे लेस्ट भी जुड़ा हुआ हो सकता था, लेट्स द फाइनेंशियल क्राइसिस विल नॉट बी रिजॉल्व, तो फाइनेंशियल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगी। सो टुडे यू हैव डन द 11 क्वेश्चंस, nearly 6-7 question you are getting it right. This is the level of the mains, okay, and can come in the examination like the SBI PO, IBPS PO mains. So it was very good that you are doing right. It was very soothing, very pleasing for me personally that I got inquisitive answers from your side. So we will meet in the next class, or I will share you PPT in the modules too. The questions which are left over by me, you can do. If you have any doubt, you can ask me in the comment section or in Telegram channel also if you have any doubt there. So thanks a lot to have a very nice class with you. We'll meet very soon. Okay, bye.